Assalamu alaikum dear learners and a very good evening. Welcome to Ababil English Level 1. In today's video we are going to talk about a few more prepositions and transition words. But before we do that, let's quickly recap what we discussed in the last video. We talked about figures of speech. We discussed idioms, similes, metaphors, and personification. We talked about how these elements can be used to beautify our verbal and written communication. Today, we're going to discuss another essential element in our communication. Yes, you guessed it right. They're called transition words. But before moving on, let's first understand what transition words are, how they can be used to convey your message more powerfully. So transition is basically a word or maybe a phrase, and it shows the relationship between paragraphs or sections of a text or a speech. These transition words provide greater cohesion by making it more explicit or signaling how ideas relate to one another. Transitions are basically bridges, and they carry a reader from one section to the other in maybe a text, or maybe any speech, written or verbal communication. Some of the examples of transition words, which are also called linking words, are given here. Let's first understand how they can be helpful in making the meaning more clear, more explicit, how they can be used to clarify the idea or making cohesive ideas in one piece of writing. For example, read this sentence. Susan spoke, thinking of the right answer. Although the sentence is correct, but somehow we feel that if there could be just one word to link both these ideas, the message would have been more meaningful. Let's do that. Susan spoke only after thinking of the right answer. Just by adding this link in there, the idea is suddenly just more meaningful. It enhances the imagination of a reader or a listener, maybe depending on what kind of communication you're using, but the listener or the reader has now more explicit and clear idea that how the situation went on. Let's see another example. Michael didn't have enough money to buy his mom flowers. He wasn't old enough to get a job. He felt sad on Mother's Day. Now imagine all these sentences, although are grammatically correct, there's no mistake in there, but there's something missing. It feels like somebody has put all the haphazard ideas on paper. Let's add some linking verbs and see how much more meaningful it becomes. For example, Michael didn't have enough money to buy his mom flowers because he wasn't old enough to get a job. Now we have a perspective that why he wasn't able to buy flowers, because he wasn't old enough. He couldn't get a job. He didn't have a job. This is why he didn't have enough money, and this is why he could not buy flowers. Nevertheless, he felt sad on Mother's Day. Now, before discussing this further, let's first discuss a very important thing, and it's a very important concept. However and nevertheless. When can you use this and what does it mean? Let's read this sentence. He was feeling very ill. However, he went to work. It's raining very hard today. However, let's go out and enjoy ourselves. She's tired. Nevertheless, she must finish her homework. Now you must have an idea how these words are being used here. Let me first explain a bit, then we'll go through it again. You see, however is a pretty general purpose word, and it is used for contrasting purposes. It works for positive to negative contrast. For example, if you have to compare one thing that's positive, but as a result of it or despite it or still keeping the fact in view, still this happens, in such scenarios you're using however. For example, John was an excellent tennis player. However,
he had never won a major competition. If you translate it in Urdu, what it becomes is जॉन एक बहुत अच्छा टेनिस का खिलाड़ी था, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई मेजर कंपटीशन नहीं जीता. उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर ही डिड, इसके बावजूद के लिए however यूज होगा. लेट्स talk about a negative comparison, negative to positives. Caroline was hopeless at dancing, however, she enjoyed it a great deal. Which means कि Caroline बावजूद इसके कि एक hopeless dancer थी, उसको डांस करना नहीं आता था, उसके बावजूद she enjoyed it a great deal, लेकिन उसको करने में अच्छा लगता था. अगर nevertheless की बात करें, ऑल्दो कि ये उसी सिनेरियो में ही यूज़ हो रहा है, समटाइम्स लोग इसको रिप्लेस भी कर देते हैं कि अगर हाउएवर लगाना था तो वो नेवरदलेस या नॉनदलेस लगा देंगे या स्विच कर देंगे दोनों की प्लेसेस. लेकिन इसमें एक छोटा सा फ़र्क ये है कि नेवरदलेस हैज़ अ मच मोर स्पेसिफिक पर्पस. इट्स यूज टू कंट्रास्ट अ पॉजिटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ प्रीसीडिंग नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें हमेशा कंट्रास्ट में पहले पॉजिटिव आएगा, which is with a preceding negative piece of information. When the latter exists or has some about despite the former. Latter और formal का आपको आइडिया होगा. Former का मतलब जो पहले आ रही है चीज़, और latter का मतलब जो बाद में आ रही है किसी भी सेंटेंस में. ऑब्वियसली हम मल्टीपल क्लॉजेज वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसमें however या nonetheless या nevertheless आ रहा है, और they're always followed by a comma. ये भी एक याद रखने के लिए बात है. We'll use this step when we are going to talk about the essay writing thing. हमेशा इन वर्ड्स के बाद कॉमा आता है. अच्छा जी, nevertheless की एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर भी है. She is tired, nevertheless she must finish her homework. Let me give you another example. अभी हमने जो थोड़ी देर पहले कहा था उसी को दोबारा ले लेते हैं. Caroline was a hopeless dancer, और Caroline was hopeless at dancing. Nevertheless, she enjoyed it a great deal. इसको आप दूसरी तरह से बहुत सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसको ये भी कह सकते हैं, She is tired, but still she must finish her homework. Caroline was hopeless at dancing, but still she enjoyed it a great deal. तो ये उसके बावजूद जो फ्रेज़ है उर्दू में, उसको रिप्लेस करना है इंग्लिश में however, nevertheless या nonetheless के साथ. और इन तीनों वर्ड्स में से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद सेंटेंस में हमेशा कॉमा लगता है. तो ये बात आपने जहन में रखनी है. ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू ट्रांजिशन वर्ड्स. ट्रांजिशन वर्ड हमारे एसे में हर जगह पे यूज़ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3 तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो कि उनकी बहुत सारी क्लासेस हैं जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और डिटेल में डिस्कस करेंगे एसे वाले मॉड्यूल में. बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ट्रांजिशन वर्ड्स कहाँ यूज़ हो सकते हैं. ट्रांजिशन वर्ड्स कैन बी यूज्ड विद इन अ पैराग्राफ. दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड बिटवीन 2 पैराग्राफ्स, and they can also be used between sections. कैसे? We'll discuss this in detail when we are going to talk about the essay writing. यहाँ पे for example generally speaking essay में 3 parts होंगे. For example एक introductory paragraph है और एक closing body या closing paragraph है जिसमें आप conclude कर रहे होते हैं, और बीच में अगर आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी depending on the word limit जितने paragraphs हैं उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स या जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी चीज़ आपने डिस्क्राइब करनी है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसके बारे में वो बॉडी है. जब आप कंक्लूजन की बात करते हैं या क्लोजिंग पैराग्राफ की बात करते हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ को अपने पूरे ऐसे में जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं या जो फैक्ट्स आपने प्रोवाइड किए हैं उनके साथ लिंक करना ज़रूरी है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिखी है उसमें से आप कॉमा से पहले वाला वर्ड, कॉमा से पहले वाले जितने वर्ड्स हैं उनको 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि वो गायब हो गए. जस्ट रीड पॉइंट बी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Although the sentence is correct, the phrase has no grammatical mistake, but the meaning is not clear. Point B का मतलब है कि कोई उसका perspective, कोई उसका context भी तो होगा ना, कोई background भी तो होना चाहिए. उस background को देने के लिए आप शुरू में ऐड करते हो एक linking word. In addition to point A, point A के साथ साथ point B भी बहुत important है. Now see for yourself, it makes a great difference.
इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3, 4 या 5 आर्गूमेंट दिए किसी भी थीसिस स्टेटमेंट के बारे में कि उन्होंने कोई भी फैक्ट मुझे डिस्कस करने के लिए ऐसे में क्वेश्चन दिया और मैंने उसको डिस्कस करने के बाद उसके बारे में सारी बातें फैक्ट्स स्टेट करने के बाद मैंने कहा द थीसिस इज क्लियर. मेक इट मोर क्लियर, मेक इट मोर मीनिंगफुल, मेक इट रेलिवेंट टू ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव जस्ट मैंशनड. तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? इन कंक्लूजन द थीसिस इज क्लियर मीन्स कि जितना भी आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जितने फैक्ट्स आपने वहाँ पे स्टेट किए हैं, उन सब का क्रक्स ये है, उन सब का निचोड़ ये है कि थीसिस इज़ प्रीटी क्लियर. फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ किया, आपने प्रोज एंड कॉन्स किसी चीज़ के बताए, उसके ऊपर सारा ऐसे था. फॉर एग्जांपल करप्शन के बारे में कोई ऐसे था, तो आपने उसके सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पाकिस्तान में बता दिए. अब आप क्या कहेंगे एंड पर? Answer results from the point made earlier in this paper. अगर इससे पहले आप सिर्फ छोटा सा लिंक ऐड कर दें कि जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करते हुए लॉजिकली आंसर रिजल्ट्स फ्रॉम द पॉइंट्स मेड अर्लियर इन दिस पेपर और इन दिस essay और इन दिस आर्टिकल whatever you're thinking it is, तो सिर्फ एक लिंकिंग वर्ड ऐड करने से आप देखें कि मीनिंग कितना ज़्यादा क्लियर हो जाता है. It all makes more sense all of a sudden because उसमें कोहेजन आ जाती है, आइडियाज़ एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं. ऐसे नहीं लगता कि कोई रैंडम थॉट्स थी जो आपने पेपर के ऊपर फेंक दी हैं या रैंडम थॉट्स थी जो आपने बोल दी हैं. फॉर एग्जांपल अब अगर आप नोटिस करें तो मैं अपने लेक्चर्स में जितनी भी बातें कर रही हूँ मैं उनके साथ साथ उनकी एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट ट्रांजिशन वर्ड्स. So I'll first explain what transition words are, how they can be used, and then I'll straight come to for example, which means I am linking this idea. I'm linking an incident with what I have just mentioned to endorse or to corroborate that statement or that definition कि हाँ वाकई ऐसे होता है. For example, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल बी देखें, एग्जाम्पल डी देखें, ये सब इसी फिनोमेना के एग्जाम्पल हैं. सो द पॉइंट इज़ मोर क्लियर टू यू. ऑलराइट, मैंने कहा था कि ट्रांजिशन वर्ड्स की कुछ कैटेगरीज या कुछ क्लासिफिकेशन है. सो कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में आ रही है तो उसके लिए आप ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की इम्पोर्टेंस पे एक ऐसे लिखना था तो मैं उसमें 3, 4, 5 फैक्ट्स जो हैं वो स्टेट करूँगी, उसके बारे में कुछ हकायक बताऊँगी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो दूँगी. तो मैं फ़र्ज़ करें कि उसमें 4 पैराग्राफ्स बनाना चाहती हूँ. मैंने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद मैं लिखूँगी फर्स्टली एक्सपोर्ट ऑफ दिस एंड दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन और डिपार्टमेंट इन द कंट्री इज़ फ्लरिशिंग. और उसके बाद पूरा पैराग्राफ. उसके बाद थर्डली आई विल राइट प्रॉबली वन मोर फैक्ट अबाउट इट. एंड उसके बाद मैं लिखूँगी फाइनली मीन्स. और अब आप देखें कि ये सब ऑर्डर में है, 1, 2, 3, 4. आप हैपहैज़र्डली आइडियाज़ नहीं फेंक रहे. और आखिर में अगर इसी ऑर्डर वाली लिस्ट में आप लास्ट में देखें तो आखिर में कंक्लूडिंग पैराग्राफ के रिमार्क्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1, 2, 3 फैक्ट्स बता दिए, उसके बाद मैं कहूँगी फाइनली और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और अबव ऑल या सबसीक्वेंटली. इस तरह की चीज़ें हमेशा ऑर्डर में बताने के लिए यूज़ होती हैं ताकि आपको नेविगेट करने में आसानी हो. नेविगेट करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टुमारो फॉर अ कंपेटिटिव एग्ज़ाम, मे बी CSS और PCS और मे बी IELTS और समथिंग, तो उसमें अगर आप रीड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आपको एक आर्टिकल दिया गया जो आपने रीड करना है या आपने एक ऐसे लिखना है किसी भी प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो आपको अपने आइडियाज़ अरेंज करने में आसानी होगी. किस तरह से आइडियाज़ अरेंज करेंगे ऐसे में, ये हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह ऐसे वाले मॉड्यूल में ज़रूर कवर करेंगे. उसमें हम फ्रॉम द स्क्रैच ऐसे को बिल्ड करना सीखेंगे कि कैसे एक कॉम्पैक्ट और एक कॉन्क्रीट ऐसे का मटेरियल आप स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो. तो ये सारी बातें उसमें भी डिस्कस हो जाएंगी. एक और कैटेगरी है हमारे पास एम्फोसिस करने की, कि अगर आपने अपनी बात पे जोर देना है, उसको कोरोबोरेट आपने करना है, किसी फैक्ट से उसको बैकअप करना है या उसे सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. इंडीड, इट शुड बी नोटेड, इट इज़ मैंशनड विदाउट अ डाउट,
ऑब्वियसली स्पीकिंग, अनक्वेश्चनेबली कि ये तो होता ही होता है, ज़रूर होता है, पर्टिकुलरली, स्पेशली, ये सब वर्ड्स उसके लिए यूज़ होते हैं और ये हम एग्जाम्पल्स के साथ इंशाल्लाह ऐसे में पढ़ेंगे. देन वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज़ एडिशन. कि अगर आपने, अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपने जब किसी चीज़ को एडिशन करना होता है, एडिशन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है आपको? आप अलग अलग बात करते हो, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2. जब आप फैक्ट नंबर 3 पे पहुँचेंगे, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग कि आप पहले दोनों आइडियाज से उसको लिंक करो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है इट इज़ ईजियर टू नेविगेट फॉर अदर पीपल. जो सुन रहे हैं वो भी अपने मे बी मेंटल नोट्स बना रहे हो कि अच्छा इसने एक बात ये की, दूसरी ये की और तीसरी ये की. लेकिन जब आप उसमें फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली या फर्दर मोर या मोर ओवर नहीं लगाएंगे तो उसमें समझ नहीं आएगी कि इन्फॉर्मेशन कैसे तरतीब दी गई है. और ऐसे लगेगा कि हैपहैज़र्ड, बिल्कुल रैंडम आइडियाज़ जो हैं वो लिखे हुए, तो जो पढ़ रहा होगा उसको भी याद रखने में मुश्किल होती है. देन वी हैव कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स. उसके लिए भी हमें लिंकिंग वर्ड्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी भी फैक्चुअल ऐसे में 2 डिफरेंट लोगों की ओपिनियन या 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बताने हैं, तो आप में भी कहेंगे कि डार्विनिज्म तो ये कहता है, बट अनलाइक डार्विनिज्म लेमार्किज्म ये कहता है, और मे बी डार्विनिज्म ये करता है वेयर एज लेमार्किज्म सच एंड सच स्टेटमेंट देता है. ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ऑन नेचुरल सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वगैरह पे. तो अगर आप उसके ऊपर या किसी भी कंट्रास्टिंग आइडिया पे बात कर रहे हो जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट बात कर रहे हैं, तो आप उसमें ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि इसमें ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं. तो ये भी हम सारा आपने अपने पास ये नोट रखना है. हम ऐसे वाले लेक्चर्स में इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे, ऐसेज में यूज़ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनको निकाल दें या इनको लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन में. देन वी हैव सम मोर: एग्रीमेंट, एडिशन, सिमिलैरिटी. और लास्ट में बिल्कुल जब आप कंक्लूड कर रहे हैं, समरी बता रहे हैं या रीस्टेट कर रहे हैं अपना थीसिस स्टेटमेंट को या टॉपिक को या जो भी प्रॉम्प्ट था, ये बताने के लिए कि जी मैंने जितने फैक्ट्स यहाँ पे ऐसे में 1 2 3 4 बताए हैं उन सब की समरी ये है, और जो टॉपिक था ये उससे बिल्कुल अलाइन है, उससे मैच करती है बिल्कुल. तो उसके लिए ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है. यू हैव टू नोट इट डाउन, कीप इट विद यू, कीप इट सेफ, एंड विल कम बैक टू दिस in the essay module. Alright, now pause this video here for 2 minutes and read this out very, very clearly, slowly, understand, and just let me just ensure one thing, that this paragraph does not have a single grammatical mistake. All the sentences are correct. But just pause this video right here and read it out. Alright, रीड करने के बाद अब मैं आपको इसका एक दूसरा वर्जन दिखाती हूँ और फिर आपने खुद कंपेयर करना है और बताना है कि कौन से आइडियाज़ में ज़्यादा कोहेजन है, और यही कोहेजन हम जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एसेज में भी नज़र आएगी जब हम ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करेंगे. मैंने इसमें कुछ थोड़ी सी जगहों पे ट्रांजिशन वर्ड डाले और मैंने उनको बोल्ड कर दिया. नाउ पॉज द वीडियो अगेन और इसको दोबारा से रीड करें और फिर सी फॉर योरसेल्फ कि कितना डिफरेंस है. सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स को ऐड करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत पावरफुल है, मीनिंगफुल मैसेज है. फॉर एग्जांपल, लेट्स लुक एट दिस वन. Eliminating computer viruses on your computer is not very difficult. There are a few things you can do. First, turn on Windows Firewall. Go to Control Panel, click on Windows Firewall. Although ये सही था, ये मैं पिछली स्लाइड पे पढ़ रही थी कि पिछली स्लाइड में यूँ लिखा हुआ था. अब जब मैंने यहाँ पे to do this ऐड कर दिया तो ये लिंक कर रहा है. Turn on the Windows Firewall को लिंक कर रहा है कि turn on द विंडो फायरवॉल, और उसके बाद अगला स्टेप ये है कि कंट्रोल पैनल पे जाएं. टू डू दिस, इसको करने के लिए, ऑल्दो अगर आप नहीं लिखते तो सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन जब आप लिख देते हैं तो कोई भी, अगर कोई नॉविस रीडर है, कोई नया रीडर है, उसको अभी पढ़ना नहीं आ रहा, ही हैज़ अ हार्ड टाइम नेविगेटिंग थ्रू द इंफॉर्मेशन. उसको नहीं समझ आ रही कि अच्छा पहले तो लिखा था टर्न ऑन द विंडो फायरवॉल, तो अब लिख दिया कंट्रोल पैनल पे जाएं, तो पहले क्या करना है. तो उसको ये समझाने के लिए कि ये एक ही बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपने विंडोज़ फायरवॉल कैसे ऑन करनी है, तो इसलिए हमने टू डू दिस यहाँ पे ऐड कर दिया. मैसेज क्लियर हो गया.
टू डू दिस गो टू कंट्रोल पैनल और यहाँ पे कॉमा हटा के मैंने लिख दिया एंड, विच मीन्स दोनों पार्ट्स को लिंक कर दिया कि कंट्रोल पैनल खोला और फायरवॉल के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरह मैंने बहुत छोटे छोटे सटल यहाँ पे ऐड किए हैं ट्रांजिशन वर्क, बहुत सटल तरीके से, जिससे मीनिंग बहुत क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, एज प्रॉमिस्ड लेट्स डू सम मोर प्रपोजिशंस। हमने कुछ प्रपोजिशन पढ़ी थी टाइम और लोकेशन के हवाले से, कुछ प्रपोजिशन हम एसेज में भी कवर करेंगे। अभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीछे, दरमियान में, नीचे, ऊपर, अंदर, सामने, साथ, करीब और ऊपर। अब यहाँ पर दो ओवरलैपिंग चीज़ें हैं जो उर्दू में बिल्कुल सेम है, और मैंने ये उर्दू सिर्फ इसलिए बोली है, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, विच इज़ जब हम उर्दू से इंग्लिश में अपनी सोचें ट्रांसलेट करके बोलते हैं तो हमें फ्लुएंसी का मसला क्यों आता है और हम प्रपोजिशन क्यों उल्टी बोल देते हैं। बिकॉज उर्दू में अबव और ऑन दोनों का एक ही मतलब है, ऊपर और ऊपर, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अगर आप पिक्चर्स देखें, द डॉग इज़ अबव द फायर हाइड्रेंट, द ब्लू डॉग इज़ अबव और ओवर, उसके ऊपर है। इसी तरह ऑन पे देखें, द डॉग इज़ ऑन द टेबल, दोनों एक ही बात है, वो ऊपर है, वो भी ऊपर है, लेकिन अबव और ऑन में फ़र्क ये है कि उसके ऊपर से गुजर रहा है। द एरोप्लेन इज़ अबव माई हेड, ये नहीं कह सकती द एरोप्लेन इज़ ऑन माई हेड। यू सी द डिफरेंस? मेरे सर पर से गुजर रहा है, मेरे अगर मैं सर उठाऊं तो मैं उसको ऊपर से उड़ता हुआ देख सकती हूँ। दिस इज एरोप्लेन इज अबव माई हेड, इट्स ओवर माई हेड, बट ये नहीं कहूँगी कि एरोप्लेन इज ओवर माई हेड, सॉरी ऑन माई हेड, बिकॉज वो हो जाएगा कि बिल्कुल मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सो डॉग इज ऑन द टेबल एंड द ब्लू डॉग इज अबव द फायर हाइड्रेंट। यहाँ पे अगर फायर हाइड्रेंट वाली पिक्चर गौर से देखें तो इसको मैं ये नहीं कह सकती कि डॉग इज़ ऑन द फायर हाइड्रेंट, बिकॉज द डॉग इज़ नॉट ऑन दैट, उसके ऊपर नहीं वो बैठा हुआ, वो उसके ऊपर से पास कर रहा है, जबकि टेबल के ऊपर मौजूद है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। इसी तरह समटाइम्स लोग नेक्स्ट टू और बिसाइड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। बिसाइड का मतलब भी साथ साथ है और नेक्स्ट का मतलब भी जस्ट राइट नेक्स्ट टू इट, यानी मेरे बिल्कुल साथ। जॉर्ज इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है जॉर्ज। और बिसाइड अगर मैं यूज़ करूँ, जॉर्ज इज सिटिंग बिसाइड मी, बिल्कुल मेरी साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है। सेम मीनिंग है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। इसी तरह नियर और क्लोज टू, द डॉग इज नियर द बुक और द डॉग इज क्लोज टू द बुक, दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन नेक्स्ट टू और क्लोज टू में फ़र्क है। नेक्स्ट टू का मतलब है बिल्कुल साथ, यानी बीच में कोई नहीं है, नोबडी इज़ इन बिटवीन, हम दोनों की कुर्सियाँ बिल्कुल साथ साथ हैं। लेकिन क्लोज टू का मतलब है मे बी एक दो कुर्सियाँ छोड़ के बैठा हुआ है, यानी मेरे आसपास बैठा हुआ है और मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। तो क्लोज टू और नेक्स्ट टू में एक डिफरेंस तो ये हो गया। इसी तरह हमने अबव और ऑन का डिफरेंस भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने कहा ना कि क्लोज टू का मतलब है कि इन बिटवीन भी कुछ हो सकता है, तो बिटवीन भी पिक्चर से बिल्कुल आपको क्लियर है, द बोन इज़ बिटवीन द टू डॉग्स। और ऑब्वियसली ये ओवरलैपिंग इसका कोई मतलब नहीं है, बिटवीन मीन्स दरमियान में, यानी दो चीज़ों के दरमियान। बिहाइंड और इन फ्रंट, ये भी हम दोनों डायरेक्शंस जानते हैं। बिहाइंड मीन्स पीछे और इन फ्रंट मीन्स आगे। द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ द मैन और डॉग इज़ बिहाइंड द पोस्टमैन। दीज आर प्रीटी क्लियर एंड सिंपल। इसी तरह इन और ऑन में भी डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते आई एम लाइंग ऑन द बेड, मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ। अगर आपने डेली रूटीन में फ़र्ज़ करें ये बताना है, तो आप प्रेपोजिशन जब उर्दू से इंग्लिश में चेंज करोगे अपने सोच को, अपने थॉट को, और बोलोगे बड़ी क्लियरली, सम टाइम स्टूडेंट्स, ये चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स उसको कहते हैं आई एम लाइंग ऑन द बेड। ये गलत है। बेड के ऊपर नहीं लेटे हुए आप, बेड के अंदर, बेड में, तो उसको आप में से ट्रांसलेट करेंगे। द डॉग इज इन द बेड, देयर इज अ थर्मामीटर इन इट्स माउथ, नॉट ऑन इट्स माउथ।
तो ये दो चीज़ें थी जिसके बारे में डिफरेंस मैंने बताना था. आई एम श्योर इट्स प्रीटी ईजी एंड क्लियर, एंड व्हेन वी यूज इट ऑन द सेंटेंसेस द मीनिंग विल बी मोर क्लियर. अभी मैंने एक प्रपोजिशन और भी बोला है यहाँ पे. आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रपोजिशन था और मैंने क्या गलत बोला और वहाँ क्या आना चाहिए था, और नोट कर लें इसको अपने पास. ऑलराइट, कुछ डायरेक्शंस की प्रपोजिशंस हैं जो ऑब्वियसली बहुत क्लियर हैं, लेकिन उसके बावजूद आई वांटेड टू हैव यू टू हैव अ लुक ऑन इट. एंड अप और डाउन का हमें पता है, अराउंड का भी हमें पता है कि किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाना इज़ अराउंड. अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, अक्रॉस का मतलब किसी चीज़ के साथ से गुजरता हुआ, पास्ट का मतलब किसी चीज़ के साथ से गुजरता हुआ. लेकिन अगर आप इनकी पिक्चर्स देखें तो इनमें एक बहुत बारीक सा फ़र्क है. अक्रॉस का मतलब है किसी चीज़ पर से गुजरता हुआ, और पास्ट का मतलब है किसी चीज़ के साथ से होके गुजरता हुआ. दोनों में फ़र्क है. इसमें अब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं इन द PW यूजिंग अक्रॉस एंड पास्ट. इसी तरह फॉरवर्ड, अवे, ऑन टू एंड ऑफ. द डॉग इज जंपिंग ऑफ द बॉक्स. ऑफ द बॉक्स का मतलब किसी चीज़ से नीचे उतर जाना. ऑन टू का मतलब है उसके ऊपर, छलांग लगा के उसके ऊपर. द डॉग हैज़ क्लाइम्ड ऑन टू द बॉक्स, ऑन टू द बेड, उसके ऊपर आ जाना. द डॉग इज़ गोइंग अपस्टेयर्स, द डॉग इज़ कमिंग डाउनस्टेयर्स. इसी तरह ये सारे प्रपोजिशंस के हम बारी बारी से सेंटेंसेस बनाएंगे और उनको यूज़ करेंगे. लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. मैंने यहाँ पे रेड में कुछ प्रपोजिशंस को हाईलाइट किया, विच मीन्स के प्रपोजिशन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आएगा. जॉर्ज इन्वेस्ट्स हर मनी ऑन द स्टॉक मार्केट. ये मैंने इसलिए लिखा है कि समटाइम्स जब हम उर्दू से ट्रांसलेट करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है यही वाली कि हम प्रपोजिशन ओवरलैपिंग मीनिंग की वजह से उसको गलत लिखते हैं. जॉर्ज ने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट पर लगा दिया. अब पर लगा दिया को हमने ऑन द स्टॉक मार्केट ट्रांसलेट किया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है. जॉर्ज इन्वेस्ट हर मनी इन द स्टॉक मार्केट, ऑन नहीं, इन द स्टॉक मार्केट. लेट्स लुक एट अनदर वन. और ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन. मैरिड के साथ बहुत गलती करते हैं. आई एम मैरिड विद अ डॉक्टर, बिल्कुल गलत. मैरिड के साथ हमेशा आएगा टू. आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर. कभी भी मैरिड के साथ विद नहीं लगाना. ये बात अब आपने याद रखनी है, बिकॉज ये मिस्टेक मेरे स्टूडेंट्स में नहीं होनी चाहिए. शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स. वो डॉग्स से डरती थी. उर्दू से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तब तो बिल्कुल सही लगेगा कि फ्रॉम डॉग्स ही होगा. डॉग्स से डरती थी की तरफ से, फ्रॉम वो वहाँ से ट्रांसलेट करते हैं फ्रॉम, लेकिन एक्चुअल में जो सही प्रपोजिशन है इसके लिए वो है शी वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. और इसको प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन हियर एज वेल, बिकॉज ओ एफ को हम ऑफ नहीं कहते. ओ डबल एफ इज़ ऑफ, और ओ एफ यानी सिंगल एफ को हम पढ़ेंगे ऑफ. ओ के साथ वी की साउंड. शी वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, नॉट शी वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. दोनों का मतलब बहुत डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन. ऑफ का मतलब ऑफ द हुक, यानी उससे दूर, जैसे अभी हमने प्रपोजिशन में भी ऑफ पढ़ा था कि शी वॉज जंपिंग ऑफ द बॉक्स, डॉग वॉज जंपिंग ऑफ द बॉक्स, दैट इज डिफरेंट. तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. हिज कार इज सुपीरियर देन माइन. अब यहाँ पे समटाइम्स स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है कि दैन तो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे दैन क्यों गलत लिखा हुआ है. यहाँ पर सही प्रपोजिशन है हिज कार इज सुपीरियर टू माइन. कंपेयर करने के लिए हिज कार इज सुपीरियर टू माइन, मेरे से ज़्यादा. Alright, now we've come to the daily dose and I've got some interesting thing here. अभी हम prepositions की बात कर रहे थे और हमने देखा कि prepositions हमेशा sentences के बीच में हम यूज़ करें. किसी भी sentence में कहीं middle में कोई preposition आ रही है. लेकिन एक interesting बात यह है कि you can end a sentence with a preposition. And most of the times those sentences are interrogatives. सवाल होते हैं. For example, ऐसे प्रपोजिशंस को हम कहते हैं डैंगलिंग प्रपोजिशन. जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, डैंगलिंग का मतलब जो आखिर में बिल्कुल हैंग कर रहा होता है, जो आखिर में लटक रहा होता है.
dangling preposition is used at the end of the sentence or phrase. For example, what are you looking at? अब ये at is a preposition. अब आप इसको इस सेंटेंस में कहीं अगर मिड में यूज़ कर सकते हैं तो सोचें उसको यूज़ करना, बिकॉज मीनिंग क्लियर इसी तरह हो रहा है कि आप क्या देख रहे हैं. वॉट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ की तरफ देख रहे हैं. वॉट आर यू लुकिंग एट. इसी तरह अगर मैं कहूँ आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वॉट आर यू वेटिंग फॉर. उसमें ऑब्वियसली फॉर को सेंटेंस के मिडल में कहीं भी रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम वहाँ पे डैंगलिंग preposition यूज़ करते हैं टू मेक इट अ मोर स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस. Obviously interrogative sentence. Now think about a few more interrogative sentences and the dangling prepositions that we can use to pair with them and write it in your project work. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के हवाले से, आपने ये बहुत एक मशहूर बात सुनी होगी कि लर्न हाउ टू से नो. नो कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली आउटराइट नो इज़ वेरी रूड. तो कुछ बातों को कहने का एक तरीका है जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से आप किसी चीज़ के लिए मना कर सकते हो या अपनी नापसंदीदगी या नागवारी बता सकते हो. तो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, दैट्स अ बैड आइडिया. कोई पार्टी का आइडिया डिस्कस हो रहा है, किसी गेट टुगेदर का आइडिया डिस्कस हो रहा है और आपको कोई आइडिया पसंद नहीं आया. दैट्स अ बैड आइडिया. ऑल दो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहने का तरीका गलत है. सही तरीका क्या हो सकता है, या पोलाइट वे ऑफ सेइंग इट इज, आई एम नॉट सो श्योर दैट इट्स अ गुड आइडिया. सी, दिस इज मोर पोलाइट, दिस इज वेरी नाइस, and the other person would not mind. He will probably appreciate the feedback and maybe come up with a better idea. Leave me alone. Instead of saying this, instead of being rude and telling the other person to leave you alone, you can probably say, sorry, I'm a bit busy right now, which means कि आप politely अगले बंदे से क्या रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ी देर के लिए आपको अकेला छोड़ दे, instead of just saying it outright. It's hot, open the window. बहुत गर्मी है और आप किसी को ऑर्डर करें कि विंडो खोल दें, उसके बजाय इसको कहने का एक अच्छा तरीका ये है, डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो. समटाइम्स इसको हम रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं. हम रिटोरिकल क्वेश्चन भी किसी डेली डोज में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मतलब है, कि आप विदाउट कमांडिंग हिम उसको ऑर्डर करने के बजाय आप उसको पोलाइट वे में एक चीज़ सजेस्ट कर रहे हो, और अंडरस्टूड है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग वैसे रिफ्लेक्सिवली ही उठ के विंडो खोल देंगे. सो इट्स नाइस कि आपने उनको ऑर्डर अराउंड नहीं किया, उनको रिक्वेस्ट किया या उनसे एक सजेशन शेयर किया और उन्होंने आपके कहे बगैर ही इम्प्लाई करके उसको खोल दी विंडो. सो पर्पस सॉल्व्ड. आई हेट दिस कलर. अगेन वेरी रूड. आई हेट दिस कलर, और प्लीज़ नोट के हेट, एबहोर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं, ये ऑफेंसिव हैं. इनको यूज़ नहीं करना, चाहे रिटन कम्युनिकेशन है या वर्बल है. और ख़ास तौर पे जब कंपेटिटिव या एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. तो अगर आपने अपनी नापसंदीदगी या नागवारी बतानी भी है तो कैसे बताएंगे? आई हेट दिस कलर की जगह आप कह सकते हो, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दिस कलर. मुझे ये कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है. सो आपने बता दिया दैट यू डिसलाइक इट, बट आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड भी यूज़ नहीं किया. कम हियर. अगेन किसी को कमांड करने की, ऑर्डर देने की बजाय कम हियर की जगह आप यूज़ कर सकते हैं कुड यू कम हियर. यहाँ पे आप कुड और वुड वाली सेंटेंसेस और वो लेक्चर्स याद करें जहाँ पे हमने कहा था कि किसी चीज़ को पोलाइट या ज़्यादा फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट मेक करने के लिए हम कुड या वुड लगा देते हैं. सो कुड यू कम हियर में ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, ज़्यादा पोलाइटनेस है. इमेजिन यूर अ बॉस एंड योर जूनियर हैज़ सबमिटेड अ रिपोर्ट टू यू एंड यू डोंट लाइक दैट एट ऑल. इट्स एन ऑफुल रिपोर्ट, बहुत ही बुरी है. तो ऑफुल अगेन इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. हम जब वेरी की बात कर रहे थे, जब मैंने कहा था कि वेरी बैड को रिप्लेस करके ऑफुल कह सकते हैं, रिमेंबर दैट टेबल, तो उसमें हमने ये ऑफुल पढ़ा था. अब यहाँ पे दिस रिपोर्ट इज़ वेरी बैड और दिस रिपोर्ट इज़ ऑफुल को कहने के बजाय एक पोलाइट डिसेंट तरीका, अच्छी बेहतर कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है? बिकॉज कीप इन माइंड कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात पहुँचाना नहीं है.
कम्युनिकेशन का मकसद है कि आप किसी भी अपने आसपास अपनी विसिनिटी में किसी भी इंसान से जब बातचीत कर रहे हैं तो उसको उसमें कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगे और आप अपना मैसेज भी कन्वे कर दो. तो दिस रिपोर्ट इज़ ऑफुल को बोलने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, दिस रिपोर्ट इज़ नॉट रियली अप टू द स्टैंडर्ड, इट्स नॉट रियली अप टू द मार्क, जिसका मतलब है कि इसमें बेहतरी की और गुंजाइश है. सो इन अ वे यू आर मोटिवेटिंग द अदर पर्सन कि ये और बेहतर हो सकती है, इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेटिंग हिम बाय सेइंग दिस इज़ ऑफुल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरी तुमने रिपोर्ट बनाई है, तुम्हें पोटेंशियल ही नहीं है. तो ये चीज़ें बहुत डाउन कर देती हैं, ना सिर्फ सुनने वाले को बल्कि ख़ुद आपको भी. तो आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा बी केयरफुल कि आप कौन सी एनर्जीज बांट रहे हो, क्योंकि वही एनर्जी आपके पास वापस आती है. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पोलाइट विद पीपल अराउंड यू. कैन आई स्मोक हियर, इसमें भी अब आप क्या करेंगे, कैन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ये आपने खुद मुझे बताना है. योर वर्क इज़ंट गुड, आपका काम बिल्कुल अच्छा नहीं है. जस्ट इमेजिन अगर यही फीडबैक आपके प्रोजेक्ट वर्क पे आपको मिले. सो डीमोटिवेटिंग, सो अनकम्फर्टेबल, बहुत ही बुरा लगेगा सुन के. शायद सारा दिन बुरा गुजरे, शायद 2-4 लोगों से लड़ाई भी हो जाए क्योंकि टीचर ने आपको बहुत बुरी बात कह दी, उनको आपका काम ही पसंद नहीं आया. कितनी बुरी बात है. सो यू विल बी फीलिंग बैड द एंटायर डे. तो अगर मैं इसको योर वर्क इज़ंट गुड की जगह लिख दूँ कि आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, आई बिलीव दैट यू कैन डू अ लॉट बेटर देन दिस, such a motivating thing. You'll have a self-belief, you'll be reassured by a teacher, a person who is at a position that you value and honor so much, and you'll be so happy despite the fact कि आपका काम अच्छा नहीं था. You'll be happy कि the teacher sees potential in me, which means I'm capable of doing so much more. So this is motivating, this is positive, it's polite. You have to inculcate all these things in your communication. Be very, very careful about how you speak because this is very important. I want a hamburger. बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, लेकिन want is imperative, दूसरे के ऊपर इम्पोज करना कोई चीज़. तो उससे बचने के लिए हम इसको रीफ्रेज कैसे करेंगे. I'd like a hamburger, मैं एक हैमबर्गर खाना चाहूँगी. इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं ये करना चाहती हूँ, उसकी जगह आप कहेंगे आई वुड लाइक टू डू दिस. नो, such a strong word. You always have to avoid it. Always find a way to rephrase this. अगर कोई नहीं रिफ्रेज करने के लिए चीज़ मिलती तो एटलीस्ट नो के साथ एक थैंक्स छोटा सा लगा दें. नो थैंक्स, वो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देता है, उसको थोड़ा पोलाइट बना देता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्डली नो, आप उसके साथ नो थैंक्स भी लगा सकते हैं. और रीफ्रेज करना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. कैन आई बोरो योर पेंसिल, इट्स सिमिलर विथ कैन आई स्मोक हियर, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल. फ़र्ज़ करें कि आपने मुझसे कुछ पूछा है और मेरे पास उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप मुझे ये कह देते हैं कि टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल. दिस इज़ वेरी रूड. टेल मी इज़ इम्पेरेटिव, इट्स कमांडिंग, कि आप दूसरे को बता रहे हैं कि अच्छा जब भी टाइम होगा मुझे बता देना. यू आर ऑर्डरिंग अराउंड. तो ये ऑर्डर करने की बजाय यू हैव टू मेक अ वेरी पोलाइट स्टेटमेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट. लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, काइंडली मुझे बता दीजिएगा जब भी आपके पास फुर्सत हो. सो दिस इज़ पोलाइट. और पोलाइट कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें. आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर ऑल इन दिस कोर्स एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. इफेक्टिवली का मतलब है कि जब आप बात करें तो लोग आपकी बात सुने, जब आप बात ख़त्म कर चुके हैं तो लोग आपकी बात को याद रखें, आपकी बात को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहें. इस तरह की कम्युनिकेशन आप लोगों ने करनी है. उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे अल्फाज का इंतखाब करें, बिकॉज़ अल्फाज बहुत बहुत पावरफुल होते हैं. इसी नोट के साथ वी आर गोइंग टू वाइंड दिस लेक्चर अप एंड सी यू सून.